start looking into these hypotheses how we can build it. ठीक? तो आज जो हमारा लेक्चर है इज बेस्ड ऑन नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर विल डिस्कस के क्या है. अच्छा, for this module these two books are the reference books. Again, these two books are uploaded on Microsoft Teams and you can have a look at it. So this is one of the most easiest and trivial classifier that is very easy to understand. Intuitive है, बहुत ज़्यादा intuitive है. Okay, so let's see. This is an example. If we live in one-dimensional world, let's say one-dimensional world में हम रहते हैं, there is no y, only x, and we are giving some data points. Like this is one of the data point whose label is 0. There is another data point whose label is 6. So it's one dimension. You can see that everything is on x-axis. So these are two data points. Number 3 data point again is 0, again 0. And then I'll ask you, I have put a green blob over here and I'm asking, is this label 0 or label 6? What would you say? Without your input, I can't move forward. आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हरीबा, आपकी आवाज नहीं आई. सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? I have written a question on screen, is in front of you. I give you few data points and their labels, and then there is green data point over here, and I'm asking you whether it is label 0 or label 6, whether it belongs to class 0 or class 6. क्लास 6. Class 6. Okay. And why is it so? ये वो 6 से करीब है. 6 से करीब है, right. Again, in previous slide there were points associated to label 1 and 6 and we presented with data point with unknown label. जो हमने last sample में देखा test point based on training point, we were very quick to answer, and that is because of notion of distance, because that green point seems to be very close to 6, so it's very easy for us to say that this is 6, right? And this is the notion of distance, minimum distance जो मैं आपको बात कर रहा था. And Ariba was quick to answer that this is level 6. So this could be like class 0 and 1. So 6 is just a label. Now if we live in 2D world, so in previous example we were only plotting data points on x-axis. Now we have data points in xy. Okay. So again this red dot belongs to class 0. And then green dots belongs to class 6. And I'm asking you with the question mark over here whether this dot belongs to class 0 or class 6. 0. 0. Again with the same idea that this point is closest to this point, so probably they are similar. So they should be in same class. But if I ask you something over here, it would be very difficult to answer because this is somewhere in the middle. So you can't answer it over here just by looking at it. But this is okay. ठीक है. So this is the notion of nearest neighbor classifier, today's topic. ठीक है. So assumption of k nearest neighbor भी कहते हैं, and why it is called k? Because this is the number of neighbors. So it's called KNN, k nearest neighbor. ठीक है. And k is number of neighbors. In previous example, once you were giving me answer कि ये level 0 है या level 6 है, you were looking at only one of its nearest neighbor. But in machine learning you could have 2, you could have 3, you could have 5, usually in odd numbers, क्योंकि आपने वोटिंग करनी होती है in the end कि किसके वोट ज़्यादा हैं. तो अगर even number होंगे तो वोट बराबर भी हो सकते हैं. So usually in odd numbers. So k is number of neighbors and nn means nearest neighbor. So it's called k nearest neighbor. And formally, this is how this is formalization of k nearest neighbor. So assumption of this classifier is similar inputs have similar outputs. Right? This is
Are you getting it? Like similar inputs का मतलब है if data points are nearby, so it means they are similar and their output should be similar as well, right? जी सर. ठीक है. अच्छा, क्लासिफिकेशन रूल्स कैसे है? फॉर अ टेस्ट पॉइंट x, assign most common label amongst is k most similar training inputs. Again, k nearest neighbor. K can be anything. K is just a number and usually it's odd, right? It's k most similar training inputs. Or formula example ये कि if you are given a test point x, denote the set of k nearest neighbor as sx. So this is set of nearest neighbor. Formally sx is a subset of d. d is data set जो हमारा ट्रेनिंग का data set है. So sx is subset of d such that ये जो मैंने एक सिंबल यहाँ पे लगाया हुआ है इसको क्या कहते हैं? sx के साथ दो मॉड के साइन, इसको किस तरह पढ़ते हैं? Absolute value. नहीं, एब्सोल्यूट तो है बट इन सेट थ्योरी दिस इज समथिंग एल्स. सेट में एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकता ना. दिस इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी. इसका मतलब है कि सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट such that cardinality of this sx, right, is equal to k. There are exactly k members in this set. So k again is number. It could be 3, it could be 5, it could be 7. And इस सिंबल को क्या कहते हैं? इसको किस तरह पढ़ते हैं रीबा या उसामा? ये universal x. नहीं, for all values of x prime y prime that belongs to d but not in sx. अब ये कंडीशन बता रहा है इसकी. सो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट sx एक नियरेस्ट नेबर का सेट है जिसके अंदर k नियरेस्ट नेबर है. k नेबर्स है, अभी नियरेस्ट की बात नहीं कर रहे, k नेबर्स हैं. और सच दैट इसके अलावा x प्राइम और y प्राइम एक और सेट है जो d में है पर sx में नहीं है. So all the other members who are not part of sx, this is condition. The distance of this test point x from this point which is not part of nearest neighbor, their distance is greater than or maximum distance between x and x double prime which is part of sx. तो ये क्या रहा है कि नियरेस्ट नेबर का सेट का मतलब ये है कि ऑल दोज मेंबर जिनका डिस्टेंस बाकी तमाम पॉइंट से कम है. इन सिंपल वर्ड्स, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ के नियरेस्ट नेबर इज लेस देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर डेटा पॉइंट्स. ये समझ में आ रही बात? थोड़ी इंट्यूटिव है लेकिन लिखने में इस तरह लिखी जाती है. समझ आ गई सर. उसामा? उसामा की आवाज नहीं आ रही. सर उसका शायद माइक का मसला है. नहीं बेटा, कि लास्ट क्लास में नहीं था, आज क्यों है? उससे पिछली क्लास में आपका था, उनका नहीं था. ये क्या ऑल्टरनेट चल रहा है आप लोगों का? बताइए उसामा, ये बात आपको समझ में आई है? ओके. दैट इज एवरी पॉइंट इन डी बट नॉट इन एक्स. एटलीस्ट इसको और सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है. एवरी पॉइंट इन डी. डी क्या चीज है? डाटा सेट. डेटा सेट. एवरी पॉइंट इन डी बट नॉट इन एसएक्स. एसएक्स वो सेट है जो नियरेस्ट नेबर का है. is at least as far away from x as the farthest point in sx. So let's say अगर मैं आपको इसकी इस तरह एग्जांपल दूं, ये आपके पास बहुत सारा डेटा सेट है इधर. ये जो है ये कंसीडर डेटा पॉइंट्स. ये अजीब सी ड्राइंग हो रही है बट एंड दिस इज योर टेस्ट पॉइंट ओवर हेयर. ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने एक
क्वेश्चन मार्क नहीं चले, इसको स्क्वायर बनाते हैं. So this is your test point, and if you are looking at 3 nearest neighbor, or let's नियरेस्ट नेबर, तो ये आपके 3 नियरेस्ट नेबर है. ठीक है, इस जो डेफिनेशन है इसका मतलब है कि इन 3 नियरेस्ट पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इन सब डिस्टेंस जो बाकी पॉइंट से कम है. तो इट मींस देयर आर नियरेस्ट नेबर्स, सिंपली ये यहाँ पे भी लिखा हुआ. ठीक है. अच्छा, the important point over here is to find distance. How we can find a distance? So if you are given a data set and a test point, this all notion of nearness in k nearest neighbor is dependent on distance metric. So if we have perfect distance metric जिसके अंदर आपके same points का similar index है और different points का different index है, बहुत ज़्यादा difference है, so we are done with machine learning thing, and this is like the best machine learning classifier if we have a appropriate distance metric. But distance metric learning again is a research area. But one of the most common used distance metric family is called Minkowski distance. Generally, this is the form of Minkowski distance. ठीक है. I am sure you have seen this distance when I will give you some conditions. So this distance is, there is some parameter called p, and this p, and I'm asking you what it would be if p equal to 1, if p equal to 2. P equal to is the most common distance metric. You need to give me its name. Or number 3, when p is infinity or is very high, बहुत बड़ा एक नंबर है. And I'm sure you know name of this, at least these two distances. ये वाला ज़रा कम यूज होता है, but usually we use this distance a lot. Now look at this metric and let me know what is this name of this distance when p equal to 2, let's say. Anyone? And I think I have taken its name in my last class as well, this distance metric, or maybe class before, maybe last week, class in last week. Okay. Anyone? Ariba, Osama? Just replace value 2 and you will see कि ये क्या बन रहा है. Euclidean distance. Right, this is Euclidean. When p equal to 2 is Euclidean distance, and when p equal to 1, this is called absolute या Manhattan distance भी कहते हैं इसको. So when p equal to 1, this is the formula. You replace p over here, and you will get this one. So this is Manhattan earth mover distance भी इसको कहते हैं, इसका नाम भी है, or it's just an absolute difference. And number 2 is Euclidean distance. Most commonly used distance जो आप ज्योमेट्री में भी हर जगह पर यूज करते हैं, this is called Euclidean distance. And when p is very high, this is the name of this distance called Chebyshev distance या maximum difference. So you can imagine, let's say if I replace p with 1000, let's say this is p 1000. So you can imagine अगर इसमें कोई डिफरेंस आएगा तो ये एक मैक्सिमम डिफरेंस होगा किसी भी डायमेंशन के अंदर. Even this would be like reduced to negligible, और जो अगर डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो एक चीज़ जो है वो सुपर इम्पोज कर देगी अपने डिस्टेंस को सब चीज़ों पे. बट दिस इज नॉट recommended for most of the application, and these two distances are used mainly. अच्छा, इसके अलावा आपने कोई ज्योमेट्री में डिस्टेंसेस पढ़े, बिकॉज दीज आर लाइक मोस्ट ट्रिवियल डिस्टेंसेस, बट देयर आर होल लॉट ऑफ फैमिली ऑफ डिस्टेंसेस दैट वी कैन यूज. आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़े कि नहीं. एक महालनोबिस डिस्टेंस है, एक भट्टाचार्य डिस्टेंस है. यू कैन जस्ट लुक इनटू इट. मैंने एक अपनी जो लास्ट स्लाइड है उसमें इन डिस्टेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू इट. और इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Now I am giving you an example of 2 data points. So 2 data points are given over here. Let's say this is point A and this is point B. And I want you guys to compute a distance, Euclidean distance और Manhattan distance. आप करके मुझे इनका आंसर बताएं कि what would be the answer of these 2 data points if we use Euclidean distance or if we use Manhattan distance. Take 1 minute and give me an answer.
डॉक्टर शायद यू कैन ऑल्सो आंसर मी, इसका क्या आएगा? जी सर, मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं कर लेता हूँ मतलब। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक को तो √72 आएगा, यूक्लिडियन का जो है, आई थिंक डिस्टेंस 2 जो है। हेलो, जी जी, आई एम वेटिंग फॉर अरीबा एंड ओसामा टू अच्छा आंसर। ठीक है। सर यूक्लिडियन का √72 होगा। यू शुड हैव बीन वेरी क्विक, ये तो मैंने लिख के कर लिया इतनी देर में तो। ओके, मैनहट्टन क्या बताएं? दूसरे का 12 आंसर होना चाहिए। अच्छा, असल में अरीबा और ओसामा करके बताएंगे क्या आ रहा है। सर मैनहट्टन में आप उसका बस एब्सोल्यूट वैल्यू लेते ना एक्स और वाई का। एग्जैक्टली, ये है आपके सामने, मैंने दोबारा इसको लगा दिया। सही। इनको L1 नॉर्म भी कहते हैं, L2 नॉर्म, L1 डिस्टेंस, इनके कई नाम है। इफ यू गो इनटू बुक यू विल सी डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम डिस्टेंस मेट्रिक। और मैनहट्टन को अर्थ मूवर्स डिस्टेंस भी कहते हैं, L1 नॉर्म भी कहते हैं, मैनहट्टन भी कहते हैं। Okay, so the answer is just in front of you. So it should be under √72 for Euclidean distance and 12 for Manhattan distance. ये आपके सामने मैंने सॉल्व करके किया हुआ भी है. But the important thing is why same data points have different distance. And Earth mover के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो आपके सामने एक इमेज आ रही है, this red line, blue line and yellow line. These are all representative of Earth mover distance or Manhattan distance. Manhattan's distance usually एक एक्सेस में मूव करता है, either x और y, क्योंकि this is a norm. और आपका यूक्लिडियन जो है डायरेक्टली डिस्टेंस ले लेता है। दिस इज यूक्लिडियन जो है वो ग्रीन लाइन शो कर रहा है। इवन इफ यू कैन काउंट, ये जो जितने स्क्वायर्स आ रहे हैं यू कैन काउंट, ये 12 बनेंगे मैक्सिमम डिफरेंस इनका जो डिस्टेंस है मैनहट्टन का। बेशक किसी भी पॉइंट से मूव करके वहाँ तक पहुँच जाए। सो यू कैन जस्ट काउंट एंड यू विल फाइंड देयर आर 12 ब्लॉक्स। इसको
अर्थ मूवर डिस्टेंस या मैनहट्टन इसीलिए कहते हैं कि अरीवा प्रोबेबली वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि न्यूयॉर्क में यूजली या यूएसए में हम ब्लॉक्स की बात करते हैं कि यू हैव टू मूव 2 ब्लॉक्स अहेड एंड टर्न राइट। यूजली पाकिस्तान में ब्लॉक्स की नहीं बात करते, लेकिन ये मैनहट्टन डिस्टेंस उसी इंट्यूशन के साथ आ रहा है और इसीलिए इसका नाम मैनहट्टन है। इट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, ये डायगोनल में मूव नहीं करेगा। सो इट विल गिव यू मैक्सिमम डिफरेंस इन दैट सेंस। और यूक्लिडियन डिस्टेंस ज्योमेट्रिक डिस्टेंस से डायरेक्टली फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो व्हेन वन इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई सम डिस्टेंस मेट्रिक, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपको कौन सा डिस्टेंस मेट्रिक रखना है, बिकॉज देयर आर अदर डिफरेंसेस डिस्टेंसेस आल्सो व्हिच आर वेल सूटेड फॉर मशीन लर्निंग, जिनका नाम मैंने आपकी स्लाइड में दिया हुआ भी है। यू कैन स्टडी देम। So any question from this distance matrix? Yes, sir. No, sir. Okay. Now this is an example, you have to solve it. I am giving you a toy data set. This is the data set given over here, and these two are its attributes, and this is its label or output class. So this is target function y, and these two are x's. 6 data points are given, and I'm asking you to predict output class or label for a query data point. Query data point मैंने आपको दिए 3, 4. For k equal to 1, like for only one nearest neighbor. You need to give me an answer that this point would belong to which class based on one nearest neighbor classifier. ठीक है, तो 2 डायमेंशनल डेटा सेट है। एक्स एक्सिस की वैल्यू ये है और आपका टारगेट वेरिएबल या क्लास या आउटपुट आपकी ये वाई। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि वेयर दिस पॉइंट 3, 4 वुड लाई आइदर इन क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यू हैव 2 to 3 minutes to solve this. Any query? You can ask me if you don't understand this question. नहीं सर, क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, ये अरीबा मुझे इसका ज़रा एल्गोरिथम बताएं, किस तरह फाइंड करेंगे आप? अरीबा या उसामा, मुझे इसका बताएं एल्गोरिथम क्या होगा? सर जैसे डिस्टेंस कौन सा यूज़ करेंगे? It's up to you. You can use any of your favorite distance. You can use Euclidean, you can use Manhattan. अभी तक दो जो हमने easiest पढ़े। सर क्लास 1 को बिलोंग करेगा।
ओके अरीबा, मुझे सोल्यूशन के स्टेप्स बताइएगा व्हाई यू आर सेइंग क्लास 1. सर इसके जो पॉइंट्स गिवन है उससे क्वेरी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा ना, हर पॉइंट जो गिवन है. राइट. और तो नियरेस्ट जस्ट डिस्टेंस कौन से पॉइंट का है? नियरेस्ट डिस्टेंस मेरा ये जब x1 3 और x2 1.2. राइट. ओके, लेट मी सी. अच्छा, मैंने ये इंट्यूशन के लिए पॉइंट्स ड्रॉ भी कर दिए. सो जो मैंने आपको डेटा पॉइंट्स के लेबल्स दिए थे वो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ इन मैटलैब, यू कैन ड्रॉ इट इन वट एवर योर फेवरेट लैंग्वेज. तो आपको ये नज़र आ रहा है कि पॉइंट वैसे ही इंट्यूशन में अगर आप इसको देखें तो दिस पॉइंट इज़ वेरी नियर टू क्लास 1. जस्ट बाय ड्राइंग इट यू कैन सी दिस इज़ वेरी नियर, दिस पॉइंट इज़ वेरी नियर. और इसके जो नियरेस्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी दूर है, या तो ये है ये. सो यू इट सीम्स दैट दिस पॉइंट बिलोंग्स टू क्लास 1 बट कैलकुलेशन इज नेसेसरी. अच्छा, इसमें मैंने पाइथन का कोड भी दे दिया. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी के पाइथन में किस तरह किया जा सकता है, आप यू कैन जस्ट लुक इनटू इट. पाइथन में मैंने यही पॉइंट्स ड्रॉ किए जो मैंने आपको अभी दिए थे. रेड में क्लास 1 है, ब्लू में क्लास 2 है. Then I'll plot this green point which is query point over here, and then I calculated distance. ये distance का Euclidean distance का formula लिखा हुआ है. Simply in one line you can calculate Euclidean distance, and then I am finding minimum distance point argmin in just one line. So these are the steps of k nearest neighbor classifier in Python which I implemented, and I have a classifier. ठीक है. अब ये जो इसका आउटपुट है उस तरह से आ रहा है. ये डिस्टेंसेस आ रहे हैं यूक्लिडियन डिस्टेंसेस. आई डोंट नो इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड, तो आपको यही वाले यूक्लिडियन डिस्टेंस मिलेंगे तमाम पॉइंट्स के. यू कैन जस्ट वेरीफाई योर आंसर. और न्यू पॉइंट इज क्लासिफाइड इन क्लास 1 क्योंकि ये इसका सबसे कम है डिस्टेंस, और इसका लेबल क्लास 1 का इसने उठा के इसको आउटपुट कर दिया. तो यू कैन जस्ट वेरीफाई कि कैसे हो सकता है. ठीक है. एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं. बट आई हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग पाइथन या मैटलैब जिसमें भी इसको कोड आप खुद कर सकते हैं. दिस क्लासीफायर इन 4 to 5 लाइन्स, नॉट मैक्सिमम. जो इधर आपको कोड ज़्यादा नज़र आ रहा है वो प्लॉटिंग की वजह से नज़र आ रहा है कि मैंने प्लॉट किए. अदरवाइज यू जस्ट नीड टू कोड डिस्टेंस मेट्रिक फंक्शन एंड अ लूप दैट कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम टेस्ट पॉइंट टू ऑल द ट्रेनिंग पॉइंट्स, and in one line you can find the minimum of that point. That's it. And you have a classifier that can predict, right? यही हम machine learning में करना चाह रहे हैं. ठीक है. It's easy to understand. Now the question is, can we map an image, audio, document to a point in feature space? अभी तक हम सारी बात कर रहे हैं कि हमारे पास point इस तरह से given है. ठीक है, feature space जिसको मैंने कहा है. But if you have an image, how you can do it, right? This is very important for us using this nearest neighbor classifier. अच्छा, अब ये मैं एक पॉइंट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. दिस इज डिजिट 0. अब डिजिट 0 को फीचर स्पेस में किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिकॉज वी आर यूज टू लुकिंग एट डेटा पॉइंट्स इन फीचर स्पेस, और हम बहुत ही ईजीली उसको क्लासीफाई या डिस्टेंस निकाल के वी कैन जस्ट क्लासीफाई कि वेदर दिस पॉइंट बिलोंग्स टू विच क्लास. लेकिन इफ़ यू हैव इमेज लाइक दिस, हाउ वी कैन डू इट? ठीक है. अगर हमारे पास कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो कि हम इस स्पेस में अपने इमेजेस को रिप्रेजेंट कर सकें, देन इट बिकम्स वेरी इजी. ठीक है. सो लेट्स से इफ वी हैव दिस इमेजेस इज ऑफ 0s and 6 एंड दिस इज हैंड कैरेक्टर रिकग्निशन डेटा सेट. अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कौन सा है वो. एंड if we know now we have this kind of test query, it's very easy. अगर हमारे पास ये सारे इमेजेस डेटा पॉइंट की फॉर्म में आ जाएं तो we can just calculate the distance and we are done. जो nearest neighbor होगा will give that label, and we have a software that can recognize handwritten characters, right? काफी easy लगता है, again based on minimum distance. अच्छा, ये पाइथन के अंदर अगर आप जाएं तो दिस इज कॉल्ड हैंड रिटन डिजिट्स डेटा सेट इज देयर. ये भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अगर पाइथन में जाते हैं. दिस इज
available in Python. Scikit-learn library जो है machine learning की, this data set is available in that. This data set is made up of around 1800 images, and each image is 8 by 8. So 8 pixels in y direction, 8 pixel in x. So in total there are 64 pixels. So ये हैंड रिटन कैरेक्टर्स हैं और उनको स्कैन करके स्केल करके ये रिकॉर्ड की गई है डेटा सेट। तो बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट नहीं, 1800 इज़ जस्ट आजकल के दौर में इट्स नथिंग, बट 1800 यू कैन, दिस इज़ अ टॉय डेटा सेट एंड यू कैन प्ले विद इट। ठीक है, तो ये इमेजेस जो हैं इस तरह से नज़र आते हैं। ये एक 3 नज़र आ रहा है, एक 0 नज़र आ रहा है। ये जूम करके दिखा रहे हैं इसलिए शायद हमें देखने में मुश्किल हो रही है, अदरवाइज दे आर प्रीटी क्लियर, नज़र आ जाता है कौन सा। So there are only 64 pixels in this data set, and this is screenshot of data set. ठीक है, how we can represent image in feature space. अच्छा, ये before I start giving you answer, what is your thought? How we can represent image in feature space? सर उनके पिक्सेल्स को मैप करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे। पिक्सेल्स को मैप करने से क्या मतलब है आपका? सर मतलब ये कि जैसे हम वो पिक्सेल्स को आरजीबी में डिवाइड करते थे ना, राइट, तो उसके थ्रू हम उनके जो वैल्यूज है उनको मैप करेंगे, तो फिर ईच पिक्सल जो है वो फीचर्स ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। जी ठीक है, अरीबा आप भी कुछ कह रही थी? सर मैं यही कहने वाली थी। एक्चुअली दिस इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अभी मैं एग्जांपल में इसी तरह से करके दिखाऊंगा, बट यूजली इधर हम फीचर एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको सेकंड मॉड्यूल में नहीं, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में दी भी थी एक, इफ़ यू हैव 6 मिलियन पिक्सल्स और RGB है तो 18 मिलियन डायमेंशन आपका वो स्पेस बनेगा, विच इज़ नॉट एफिशिएंट। लेकिन अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें ओनली 64 images and only in gray levels, so there is no RGB, it's only one channel, so 64 means only 64 values. We can map it directly as a feature vector. लेकिन if you are working with high dimensional data, so usually you extract features to have more compact information, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, if you want to describe a person you hardly need 20 to 30 attributes to describe a person, and that is feature extraction. But we are not going into it. In this example, we will map directly pixel values as dimension, right? So we can represent it with any dimension. One dimension data को हम single dimension में कर सकते हैं, right? This is example of 2 dimensional, this is the 3 dimension, but I don't know how 64 dimensions could be visualized. Something like, I don't know, we don't have visualization for this. ठीक है, एक स्टार शेप की कोई चीज बन जाएगी इस तरह की, because we are not used to looking at 64 dimensions in daily life. We can visualize 3D data in pretty good way, लेकिन इससे ज़्यादा dimensions क्यूब के बाद समझ में नहीं आते। But anyway, so this is the data, just 64 dimensions है, and we can just, और इसमें RGB नहीं है, this is just gray level values, so single channel image, and pixel values would, one pixel value would be one dimension of feature vector. So अगर ये 64 है, so this is x1, let's say, this is x2, x3 and dot dot dot, और ये आखिरी जो आपका x64 है, simply. So without feature extraction, we can just use these values as feature vector values, or feature vector values. Yes, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। Right. So this image could be thought of a point in 64 dimension space. ठीक है, अगर 64 dimension होंगी, so this 64 dimension would map to a single point. ठीक है, ये कुछ 64 को बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, it would be just one point in 64 dimensional space. जैसे xy में 2 वैल्यू होती हैं, xy का सिंपल एक पॉइंट बनता है। ठीक है, so it would be something like that, एक पॉइंट बन जाएगा इधर कहीं एक डायमेंशन में, this one image.
So if we can represent image with a point in 64 dimensional space, then we need to find a distance again of a test example to training set, and we can assign label of nearest train example. And we have a classifier. We can just classify handwritten characters. आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं कि दे हैव डन दिस थिंग, और वो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, बट ट्रिवियली दिस इज वेरी इजी, इट्स इजी टू विजुअलाइज एंड इजी टू डू अगर आपका डेटा सेट बहुत ही क्लीन और नीट किस्म का है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है. तो अगेन दिस, if you can represent this with 64 dimension feature vector, this would be just 1 point, this would be 1 point, this would be 1 point, this would be 1 point in 64 dimension, and this would be 1 point again, and then with this just 1 point again we'll find the distance, and we will know that okay, this is the minimum distance, so this should be character 0 simply. Again we can use this distance if we like, otherwise we'll have whole lot of distances. अच्छा, ये distance मैंने calculate करके भी दिखाया हुआ है. So these are two distance between 0 and 0, and if you take 0 की ये values हैं, you can just read these values in Python, और उसके बाद अगर आप इनका distance, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है, L2 नॉर्म कहते हैं इसको, यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 नॉर्म है, ये 31 आता है. और 31 इसलिए आता है कि पिक्सेल्स डू नॉट मैच एग्जैक्टली. आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे डार्क ब्लैक है, पर यहाँ पे ब्लैक थोड़ा हल्का है. इधर 0 की शेप भी डिफरेंट है, ये यहाँ तक जा रहा है, पर यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, बिकॉज वी ऑल राइट 0 इन डिफरेंट वे, बट जनरली दिस इज द शेप ऑफ 0. तो इसका डिस्टेंस 31 है, बट अगर हम 0 का 6 से डिस्टेंस निकालें तो 45 आता है. सो वील नो दैट ओके, इफ वी इवन वी यूज वेरी ट्रिवियल और वेरी इजी distance metric which is Euclidean distance, still we'll know that 0 0 का distance कम होगा और 0 और 6 के image का distance ज़्यादा है. So we can design a classifier just based on Euclidean distance. ठीक है. अच्छा, ये इसका मैंने Python का कोड दिया हुआ. You can just use this data set. sklearn is library in Python, and there is a data set, right? और इस data set के अंदर है load digits. This data set is digits, so you'll say data set dot load digits. तो आपको digits में जितने भी images हैं उठ के आपको इस variable में आ जाते हैं. ठीक है. In just one line you will have all this 1800 images loaded in digits. इसके बाद सिर्फ प्रिंटिंग करके देखा है कि किस तरह से है, प्लॉट करके देख सकते हैं कि आपके पास किस किस्म का डेटा है. PLT is pyplot library, यहाँ पे नजर आ रहा होगा. अगर आप लोग पाइथन यूज़ करना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट लविंग इट, और मशीन लर्निंग भी आपको इजी लगेगी. सो ये मैंने सिर्फ एक इमेज प्लॉट करके देखा है, ये कैसे नज़र आता है. ठीक है. ट्रेनिंग सेट बाय सेलेक्टिंग फर्स्ट 10 इमेजेस. अच्छा, मैंने 1800 नहीं यूज़ किए, मैंने फर्स्ट 10 इमेजेस को ट्रेनिंग के लिए लिया है. ये देख रहे हैं आप, ये आप C या C++ में भी जिस तरह एरे को कॉल करते हैं, वो X ट्रेन में आपके पास इमेजेस का डेटा आएगा. Y ट्रेन इज लेबल ऑफ फर्स्ट 10 इमेजेस. तो आपके पास इमेज आ गया, इमेज का डेटा पिक्सल वैल्यूज और उसका टारगेट फंक्शन, टारगेट वेरिएबल या क्लास कह लें, वो आपको Y में आ गई. ठीक है. टेस्ट के लिए मैंने रेंडमली 345th वैल्यू ले लिए. पहले 10 तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए आ गया, और ये रेंडमली विदाउट लुकिंग कि ये क्या नंबर है, मैंने टेस्ट के लिए लिए कि विल सी के ये क्या होता है. ठीक है. अब यहाँ पे मैं सिंपली टेस्ट इमेजेस प्लॉट करके देख रहा हूँ कि टेस्ट इमेजेस हैं कौन से. तो एक्चुअली फर्स्ट 10 इमेजेस ये वाले हैं. ये इमेजेस मैंने 0 से लेकर 9 तक जो लिए हैं, ये टेस्ट इमेज है. तो हर क्लास के लिए एक इमेज है. 0 क्लास के लिए सिंपल ये एक इमेज है, 1 क्लास के लिए एक इमेज है, 2 क्लास के लिए एक इमेज है. तो आई एम नॉट टेकिंग ऑल द वेरिएशंस, बट आई एम इन दिस इटरेशन आई एम जस्ट टेकिंग ओनली वन एग्जाम्पल इन ईच क्लास. और ये टेस्ट इमेज है. टेस्ट इमेज को प्लॉट करके देखा है कि क्या है, फिगर में शो करके देखा है. सो दिस इज टेस्ट इमेज इज 3, एंड नाउ आई वांट टू क्लासीफाई इट ऑटोमेटिकली. ठीक है. अगेन ये वही पाइथन का कोड है जो मैंने आपको पहले दिखाया था. यूक्लिडियन डिस्टेंस कोड हुआ हुआ, आप देख सकते हैं, वही है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई ओवर 2. तो ये हर डायमेंशंस को वैसे ही ऑटोमेटिकली जो है वो माइनस कर देगा. आपको यहाँ लूप लगाने की जरूरत नहीं है कि xi को y से करें. ठीक. ये ए बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है. उसके बाद टेस्ट पॉइंट का ट्रेनिंग के हर पॉइंट से डिस्टेंस लिया लूप के अंदर,
और उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया है कि मिनिमम डिस्टेंस कौन से एग्जाम्पल का है, इंडेक्स कौन से इंडेक्स में आ रहा है, इसको एग्जाम्पल कह लें, ठीक है। और सिंपली जो नियरेस्ट डिस्टेंस का इंडेक्स है उसका y जो लेबल था उसको मैंने आउटपुट करा दिए, बिकॉज दिस इज द नियरेस्ट वन, सो प्रोबेबली दिस इज द लेबल ऑफ टेस्ट इमेजेस पे। और यही हम KNN के अंदर करते आ रहे हैं। ये तीनों स्टेप मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ कोड किए हुए हैं। स्टेप 1 2 3 आप पढ़ के देख सकते हैं कि स्टेप 1 कैसे कोड हुआ हुआ है, 2 कैसे हुआ हुआ है, 3 कैसे हुआ हुआ है, ठीक है। और नाउ डायरेक्टली जो आपका न्यू पॉइंट इज क्लासिफाइड एज क्लास 3, और क्लास 3 का मतलब है कि ये कैरेक्टर 3 है और ये 3 ही था। तो इन 5 लाइन्स वी आर प्रिडिक्टिंग हैंड कैरेक्टर्स। You just think about the power you have in your hands if you can just code it directly like this, ठीक है। Up till now we have trained model on 10 images and tested it only on 1 image. How about running and testing same model on 100 images? अब मैं ट्रेनिंग को नहीं चेंज कर रहा, मैं कहता हूँ मैं 100 टेस्ट इमेज रैंडमली उठाता हूँ और देखता हूँ कि कितना जनरलाइजेशन कितनी अच्छी है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज जनरलाइजेशन एरर, ठीक है। ट्रेनिंग में तो ठीक है, टेस्ट कैसा हो रहा है। अगेन यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। यहाँ पे मैंने ये 100 टेस्ट इमेजेस लिए हैं इन 1 लूप और उसको रैंडमली जो है हर टेस्ट इमेज को चेक किया उसके डिस्टेंस को। टोटल एरर हमारे पास आया 37। जब मैंने एक चेक किया था तो दैट वाज ओके, बट आउट ऑफ 100 नाउ वी आर गेटिंग 37 एरर्स। तो 37 का मतलब है कि 73% एक्यूरेसी आ रही है हमारी, ठीक है। 73 आ रही जितनी भी आ रही, 37% हमारा एरर रेट है, तो ये बहुत ज़्यादा है, राइट। इसमें इसको कम कैसे किया जा सकता है? हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी फॉर 100 टेस्ट एग्जाम्पल 37 एग्जाम्पल्स आर मिसक्लासिफाइड। नाउ व्हाट्स योर आइडिया हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस क्लासिफायर? सर ट्रेनिंग डाटा को बढ़ा दो। ट्रेनिंग डेटा को क्या करें? मतलब ज़्यादा इमेजेस ट्रेनिंग में यूज़ कर लो। राइट, वेरी गुड आइडिया। यस, ट्रेनिंग के डेटा को हम ज़्यादा कर दें। एक आइडिया और बहुत ट्रिवियल है जो आपके माइंड में आना चाहिए। ये आइडिया बिल्कुल सही है आपका, लेकिन एक आइडिया और भी है। अभी तक हम एक नेबर को यूज़ कर रहे हैं। देयर कुड बी नॉइज इन हैंड कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ लोग जीरो पता नहीं किस तरह लिखते हैं। जब हम ट्रेनिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट्स ओनली 1 नियरेस्ट नेबर वी कुड लुक एट 3 नियरेस्ट नेबर। तो हो सकता है कि 3 नियरेस्ट नेबर करने से वील हैव बेटर वोटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। जब 3 नियरेस्ट नेबर करते हैं तो क्लासीफायर तीनों के रिजल्ट्स को देखते हुए जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासीफायर है उसको उसका लेबल आउटपुट कर देगा, क्लासीफाई कर देगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स भी पढ़ाएं और इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट k इक्वल टू 1 वी कैन लुक एट k इक्वल टू 3। दो आइडिया जो हैं बहुत ही ट्रिवियल है जो हम कर सकते हैं। पहला आइडिया वही है, विद ओनली 10 सैंपल्स मॉडल विल नॉट बी एबल टू कैप्चर ऑल द वेरिएशंस ऑफ राइटिंग, सो वी नीड मोर ट्रेनिंग सैंपल्स। जैसे अभी बनेगा ट्रेनिंग। आइडिया 2 है, इज इट पॉसिबल टू ऐड मोर नेबर्स? By adding more neighbors, final label of test sample can be verified by majority voting. और इसीलिए कहते हैं कि k यूजली ऑड नंबर होता है, इवन नहीं होता, बिकॉज यू आर वोटिंग। अगर इवन होगा तो 50-50 भी हो सकता है। ऑड में हमेशा आपको देयर वुड बी अ वन विनर। और आइडिया 3 विच इज़ नॉट वेरी ट्रिवियल लेकिन यूजली लोग यूज़ करते हैं, इज टू चेंज डिस्टेंस मेजर। ये दो डिस्टेंस मेजर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही ईजी है। महालानोबिस डिस्टेंस और भट्टाचार्य डिस्टेंस। आई डोंट नो प्रोबेबली दिस इज डन इन स्टैटिस्टिक्स कोर्स और नॉट, बट यू कैन जस्ट लुक इट इट। अच्छा, ये मैं रिजल्ट दे रहा हूँ आपको। एडिंग मोर ट्रेनिंग सैंपल्स एडेड विद स्टेप साइज ऑफ 10। आप थोड़ा सा ये ग्राफ समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये है नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल। तो 10-10 के ब्लॉक के साथ मैं चेंज करता रहूँ, सेम एल्गोरिथम को रन करता रहूँ। सो हेयर लेट्स सी इफ आई हैव 100 ट्रेनिंग एग्जाम्पल, उसके बाद देन आई रन इट फॉर 110, सॉरी ये 120 हो गया, 140, 160, 80 और देन 200। सो मैं इसको 1500 ट्रेनिंग सैंपल्स तक चेक किए। ये एक इटरेशन का लूप लगाया था मैंने और 10-10 के ब्लॉक उसमें इंक्रीज होते जा रहे थे हर इटरेशन में।
ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई पे नंबर ऑफ एरर्स। तो जब मैं रन कर रहा था हाउ मच एरर्स आई एम गेटिंग। ब्लू लाइन शोज result with Euclidean distance, green line shows result with Manhattan or L1 norm or earth mover distance. So this is also called L2 norm and this is also called L1 norm. ठीक है, आपको अब नजर आ जाएगा कि हाउ दे बिहेव। जब आपके एरर का आपका ट्रेनिंग सैंपल कम थे तो एरर बहुत ज़्यादा था, अराउंड 37, तो अभी हमने देखा था वो यूक्लिडियन डिस्टेंस से आ रहा था। इफ़ यू रन इट विद मैनहट्टन तो वो 40 के करीब एरर है अगर हम सिर्फ 10 ट्रेनिंग एग्जाम्पल रखते हैं। बट विल सी ए शार्प ड्रॉप इन एरर even with 30 40 or I think 60 around 40, only with 40 examples training error drops to around 14%। और उसके बाद फिर एक वेरिएशन नजर आ रही है, इंक्रीज हुआ थोड़ा सा देन, बट इट्स समथिंग लाइक दिस इज, अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करें तो इस किस्म का आपको एक कर्व नजर आ रहा है। ठीक है, सो एज ट्रेनिंग नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आर गेटिंग मोर एंड मोर, क्लासिफायर इज गेटिंग रोबस्ट। ठीक है, और यूक्लिडियन मैनहट्टन में आपको थोड़ा सा नजर आएगा कि यूक्लिडियन इज प्रोबेबली गेटिंग बेटर रिजल्ट्स देन मैनहट्टन। मैनहट्टन और यूक्लिडियन में हमेशा थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है एरर में, एंड दिस इज डिस्टेंस मेट्रिक, और प्रोबेबली इफ यू यूज सम अदर डिस्टेंस आप शायद जीरो ही हो जाएगा कहीं जाके। ठीक है, सो आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है जो मशीन लर्निंग में बात करते हैं, एज वी इंक्रीज ट्रेनिंग डेटा वील हैव वेरी लेस errors in training and test as well. टेस्ट में अभी ओवरफिटिंग भी आ जाती है, आई एम नॉट गोइंग इनटू ओवरफिटिंग, बट दिस इज क्योंकि आपका यहाँ पर ट्रेनिंग का हमने सेट नहीं बढ़ाया, ट्रेनिंग का सेट 100 ही है, तो आपका टेस्ट सेट तो बढ़ता जा रहा है, ट्रेनिंग का वही है, बट दिस इज जस्ट टू कंपेयर रिजल्ट्स। ठीक है सर एक सवाल था, जी जी, जैसे अगर हम लोग K1 से K3 करें ताकि वो ज़्यादा राइट, एक्यूरेट हो, लेकिन बिल्कुल। अगर तीनों डाटा पॉइंट्स को जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो तीनों डिफरेंट क्लासेस में है, तो उसमें फिर क्या होगा? if you are using k equal to 3 और आपकी क्लासेस अगर 3 है या 3 से ज़्यादा हैं, यूजली you will have more k's the number of classes यूजली। अभी हम 2 क्लास का एग्जांपल कर रहे हैं तो k equal to 3 is a good neighborhood size, बट इफ़ यू हैव 5 क्लासेस तो k 5 नहीं हो सकता क्योंकि एक एक का हर एक का नेबर आ सकता है, सो यूजली देन विल टेक 7 और 9 और 11, usually this is rule of thumb, but again this is whole lot of field what to choose what is good k, और k के भी अपने बहुत सारे इश्यूज हैं क्योंकि अगर k हम छोटा लेते हैं तो ओवरफिटिंग है, आप नॉइस को भी मॉडल करना शुरू कर देते हैं बिकॉज नियरेस्ट नेबर उठा रहे हैं, और अगर किसी ने जीरो को जीरो लेबल किया हुआ है लेकिन वो 6 है लेट्स से, क्योंकि ह्यूमन लेबलिंग है और गलती से उसने उसको जीरो लेबल कर दिया, देन यू क्लासीफायर विल स्टार्ट लुकिंग कि ये 6 भी जीरो है, तो बहुत टाइटली उसको मॉडल करने की डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश करेगा इफ नेबरहुड साइज इज लेस, तो यूजली यू विल टेक बिट बिगर नेबरहुड साइज। ठीक है उसामा? जी सर, क्लियर। ओके, और दिस इज आइडिया 2 को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, आइडिया 2 का हमारा क्या था कि विल इंक्रीज नेबरहुड साइज। अभी तक हमने सिर्फ k इक्वल टू 1 पे बात की है, 1 नियरेस्ट नेबर पे बात की है, बट इफ वी इंक्रीज नेबरहुड साइज क्या हो सकता है, राइट? अच्छा, नाउ दिस इज द टेस्ट थ्योरी। अब मैं इसके आपको थोड़ी सी आपको विजुलाइज करके दिखाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड के नेबरहुड के साइज से होगा क्या। इफ दिस इज k इक्वल टू 1, दिस इज डिसीजन बाउंड्री काइंड ऑफ, क्योंकि ये इसके डिस्टेंस को उसका रेडियस लेके उसके इर्द गिर्द कोई डेटा पॉइंट नहीं है, देन इट विल लेबल दिस एज रेड, सो उसको डायमंड कर देगा, वो लेबल कर देगा क्लासीफायर। बट इफ यू टेक k इक्वल टू 3, योर क्लासीफायर रिजल्ट विल चेंज फ्रॉम डायमंड टू स्टार, and if you take k equal to 7, star will remain same. Now I'll ask you which is correct answer, क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ये क्लासिफायर ने तो तीनों आंसर दिए हमें, which one should we take? पहला वाला।
कौन सा वाला, और रीजनिंग भी दें आप, क्यों क्या कह रही हैं, उसकी रीजनिंग जरूर दें। सर पहला वाला लेंगे इसलिए उसमें वो सबसे करीब का। लेकिन जब हम दूसरे पे जाते हैं तो स्टार भी बहुत करीब लग रहे हैं और वो 2 हैं एक साथ। Usama, what are your thoughts? डॉक्टर शाहिद, आपके क्या, आप क्या सोच रहे हैं? जो ऑब्जेक्ट है वो तो डायमंड से ज्यादा करीब है। सही है। Sir, I'm thinking the last one. स्टार 1 No, the last one. The diamond. लास्ट The स्टार ही है ना। the yellow star हाँ, equal to ये 7. तो ये K1 है, then K2, sorry K3 and then the K7। K7. I'm talking about K7. K7 पे स्टार आता है इसका। जी। क्योंकि स्टार इसलिए कि इसमें 7 करते हैं तो आपके पास 4 एग्जांपल्स स्टार की आ जाती हैं। तो ये मेजॉरिटी वेटिंग जो है आपकी स्टार पे चली जाएगी। बट दिस इज अगेन नो वन कैन से कि कौन सा बेहतर है, बट यूजली 1 मीन्स ओवर फिटिंग, जो मैं आपको अभी बता रहा था, बिकॉज this could be a noise as well in your data. Even if with k equal to 3 it remains diamond, then it's perfect. लेकिन अगर इसका k चेंज करने पे इसका क्लासिफायर का लेवल चेंज हो रहा है, probably you have to go with the other one. But again no one can say कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। लेकिन इसका एक वे अराउंड है, और वे अराउंड ये है जो विद वोटिंग यू कुड हैव वेटेड वोटिंग। वोटिंग का मतलब पता है आपको? अभी हर एग्जाम्पल का वेट है 1, इक्वल वेट है। सो इसका भी एक वोट है, इसका भी एक वोट है, इसका भी एक वोट है। लेकिन अगर हम कह दें कि जो नियर वाला है उसका वेट ज़्यादा है और जो दूर वाली एग्जाम्पल उनका वेट कम है, देन वी कुड हैव मिक्स एंड मैच। ठीक है, जो नियर वाले को हम वेट ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि अरीबा और जो उसामा सोच रहे थे बिल्कुल ठीक है कि नियर वाला है तो यही होना चाहिए। तो अगर हम इसको नॉइस समझ के इसका वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें और बाकियों का वेट कम कर दें एंड स्टिल वी गेट द सेम आंसर, देन इट मीन्स इट वाज नॉट अ नॉइस। लेकिन अगर के बदलने से आपका आंसर बदल रहा है और वो वेटेड वोटिंग भी है, देन इट मीन्स के वो जो नियरेस्ट नेबर था वो शायद नॉइस था। ठीक है, तो ये वेटेड वोटिंग अभी आता है। वेटेड वोटिंग में बाद में आता हूँ, जब मैंने आपको पहले ही बता दी वेटेड वोटिंग। अच्छा, ये एल्गोरिथम थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, दिस इज सूडो कोड फॉर इट। ठीक है, एल्गोरिथमिक फॉर्म में के नियरेस्ट नेबर को यू कैन राइट इट इन दिस वे, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। एंड ट्रेनिंग वेक्टर्स है एंड यू आइडेंटिफाई के नियरेस्ट नेबर। अच्छा, एक क्वेश्चन दिए, के इज चूजन टू बी ऑड। अगेन जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, फॉर 2 क्लास प्रॉब्लम एंड जनरल नॉट टू बी अ मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, जो अरीबा बात कर रही थी। अगर 3 क्लासेस हैं तो आप ऑड में उसको 9 नहीं करेंगे क्योंकि वो मल्टीपल हो सकता है। तो आपके पास मेजॉरिटी वोटिंग नहीं आएगी, तो आप 11 कर लें। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस के सैंपल जो आपके के नियरेस्ट नेबर्स हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ वेक्टर के आईज, ये एग्जाम्पल है अगेन, दैट बिलोंग्स टू क्लास डब्ल्यू, और आप इनको सिंपल एक मेजॉरिटी वोटिंग कर लेंगे। ठीक है, असाइन एक्स टू क्लास डब्ल्यू आई विद मैक्सिमम नंबर ऑफ के आई सैंपल्स, सिंपल वोटिंग। असाइन एक्स, एक्स आपका टेस्ट या क्यूरी डेटा है और आपको उसको असाइन करना है क्लास डब्ल्यू आई कुछ भी, आई जो है कुड बी एनी क्लास विद मैक्सिमम नंबर ऑफ के आई सैंपल्स, जिसके के आई का मतलब है नियरेस्ट नेबर ऑफ दैट क्लास। जो नियरेस्ट नेबर है उनकी जो क्लास है, यू असाइन दैट टू एक्स। सो सिंपल सूडो कोड में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, के नियरेस्ट नेबर को। ठीक है,
ये एक और एग्जांपल मैंने दी है, इट्स अ पैरामीटर दैट हैज टू बी लर्नड, के नेबर्स। तो के का कोई मैजिक बाउंड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है टू फाइंड विच के इज गुड, it has to be learned for a problem in hand. So for each problem this k could be different, जो हम अभी भी बात कर रहे थे. So for k equal to 1, again ये एक different example है, आपका लेवल डायमंड आएगा बिकॉज दिस इज नियर बाय, एक ही है. k equal 2 पे स्टार है, क्योंकि जब आपने k equal 2 किया तो आपका रेडियस ये ब्लू वाला हो गया, एंड देन यू हैव 2 ऑफ स्टार्स, तो वोटिंग इनकी ज़्यादा हो गई. बट k equal to 7 करेंगे तो पहले पे वापस चला गया. देयर मल्टीपल सिनेरियो, k equal to 7 पे वापस वो डायमंड पे चला गया. ठीक है, तो बीच में k equal to 3 पे स्टार पे आ गया, k 7 पे वो डायमंड पे चला गया. तो इसका आंसर वही है जो मैं आपको बता रहा था कि वेटेड वोटिंग की जाती है. इंप्रूवमेंट यही है, डिस्टेंस वेटेड नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम. वन ऑब्वियस रिक्वायरमेंट टू वेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच के नियरेस्ट नेबर अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस टू क्यूरी टेस्ट पॉइंट. ठीक है, जो ज़्यादा करीब है उसका वेट ज़्यादा है, जो दूर है उनका वेट कम है. बट विल टेक ऑल द नियरेस्ट नेबर, हम k इक्वल टू 7 ही लेते हैं, लेकिन हर एक को वेट कर देते हैं, और वेट करके डिस्टेंस करने का फॉर्मूला ये है. ठीक है, दिस बिकम्स रोबस्ट टू नॉइज. जो मेरा पहला इशू था कि जो आपका नियरेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, दिस कुड बी नॉइज. ये लेबलिंग का इशू हो सकता है, ये नॉइज इन योर डेटा सेट हो सकती है. अगर हम k इक्वल टू 1 पे रहेंगे तो वी आर ओवर फिटिंग, वी नो दैट वी आर ओवर फिटिंग. और उसके बाद k इक्वल टू 3 बेहतर है कि 7 बेहतर है, उसके लिए हम डिस्टेंस वेटेड वोटिंग कर सकते हैं. ठीक है, एनी इशू विद इट? नहीं सर. नो सर. ठीक है, सो यू विल जस्ट टेक द वेट और उसके बाद नियरेस्ट नेबर निकाल के उनकी मेजॉरिटी वोटिंग कर. Okay, now the thing is, what is computational complexity of k nearest neighbor? Computational complexity आपको पता है? What is computational complexity? Anyone? सर कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस और टाइम में जो था. बिल्कुल बिल्कुल. तो एल्गोरिथम में की भी स्पेस और टाइम में complexity. Have you studied this? क्या किस तरह से पता चलता है कि एल्गोरिथम की complexity कितनी है? सर डॉक्टर शाहिद ने थोड़ा सा बताया था. So if I ask you k nearest neighbor का एल्गोरिथम आपके सामने है, can you tell me कि इसकी complexity कितनी है? This algorithm. कैलकुलेट कर रहे हैं या बता रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं? सर कॉम्प्लेक्सिटी आपके के पे डिपेंड नहीं करेगी. आप बताएं इसकी ट्रेनिंग कम्प्लेक्सिटी क्या होगी. चले, ट्रेनिंग फेज में क्या हो रहा है इसके? जो के नियरेस्ट क्लासिफायर है, अभी तक ट्रेनिंग फेज में हमने क्या किया इसके? सर ट्रेनिंग फेज में तो एज सच कोई कैलकुलेशन थी नहीं. बिल्कुल सही, ट्रेनिंग फेज में तो कैलकुलेशन है ही नहीं इसके अंदर. ट्रेनिंग फेज में तो हम सिर्फ प्लॉट कर रहे हैं डेटा, और प्लॉट भी विजुअलाइजेशन के लिए कर रहे हैं. एक्चुअली एल्गोरिथम में ट्रेनिंग फेज कुछ है ही नहीं, सिर्फ डेटा इनपुट कर रहे हैं ट्रेनिंग फेज में. राइट, यही हो रहा है ना? जी. जब तक टेस्ट क्यूरी नहीं आती हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. विल जस्ट टेक द डेटा एंड विल स्लीप. बस ये डेटा आ गया हमारे पास.
तो ट्रेनिंग कम्प्लेक्सिटी अब आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ 1 या कांस्टेंट टाइम, लाइक देयर इज नो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग। सही, आपने बिल्कुल सही कहा। टेस्ट कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, चलें मैं भी बताता हूँ टेस्ट कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इजी है, काफी इजी है। हमने क्या किया जरा बताइए। सर टेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी आपके ट्रेनिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। नहीं, एक ट्रेनिंग पॉइंट है, लेट्स से आई गिव हाँ ट्रेनिंग पॉइंट पे सही, एक टेस्ट पॉइंट है और ट्रेनिंग पॉइंट n है हमारे पास। सही, तो जैसे जैसे ट्रेनिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन n, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ एक चीज और है, इट विल डिपेंड ऑन डायमेंशंस। जैसे अभी हमने इमेज की एग्जांपल देखी थी, वो 64 डायमेंशनल डेटा था, हमने फीचर एक्सट्रैक्शन तो की नहीं थी, तो 64 डायमेंशन फीचर वेक्टर बन गया था। इफ यू हैव मिलियन डायमेंशंस देन इट विल बी नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स इनटू डायमेंशंस, क्योंकि आप हर ट्रेनिंग सैंपल की हर डायमेंशन से माइनस कर रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो इट बिकम्स ऑर्डर ऑफ nd, n is number of training instances and d equal to dimensions of training data। सही है। सही। जैसे जैसे आपके ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ेंगे ऐसे ऐसे ही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। एंड सेम फॉर डायमेंशन, अगर डायमेंशन बहुत ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती जाएगी। इट्स लीनियर टाइम एल्गोरिथम एंड दैट इज नॉट गुड, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। लीनियर टाइम एल्गोरिथम का मतलब है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे, डायमेंशंस पे। तो लेट्स से अगर हम मशीन लर्निंग में कहते हैं कि द मोर डेटा वी हैव मोर रोबस्ट क्लासिफायर वी कैन मेक। और अगर हम मिलियन सैंपल या 10 मिलियन सैंपल्स पे काम कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। एंड इफ़ यू कोड इन पाइथन यू विल सी कि आप जैसे डेटा बढ़ाएंगे आपका एल्गोरिथम का टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ लूप। जितने ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं उसकी हर सैंपल को जाके आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो देन k नियरेस्ट नेबर बिकम स्लो। रिजल्ट ये है कि k nearest neighbor classifier is robust, quite robust for some application, but from application point of view, this algorithm is very slow if your data set is in even in 100,000, 2,000, 3,000 तक okay, otherwise it will just blow up। आपका कंप्यूटर की मेमोरी जो है ना क्रैश होना शुरू हो जाती है। So this is not a good thing। ठीक है, एनी सजेशन टू मेक इट फास्ट। अच्छा ये दिस इज नॉट फॉर यू, इसके लिए स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट देयर आर सम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, केडी ट्रीज। इफ डेटा स्टोर्ड इन दिस स्ट्रक्चर तो ये काफ़ी फास्ट हो जाता है, बट दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक्चुअली प्रैक्टिकल इश्यूज में जो एक बहुत बड़ा इशू है ये कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ रही हैं ऐसे ही कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, और इसको मशीन लर्निंग लिटरेचर में कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड वी वांट टू रिड्यूस डी बाय रिमूविंग इररेलेवेंट फीचर्स। ठीक है, तो अभी हमने 64 फीचर्स लिए थे और आप उसमें शायद देख रही होंगे कि उसके बॉर्डर्स खाली थे, बिल्कुल उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वी कैन रिमूव इट। हम सिर्फ वो वाला पार्ट लें जो हमारे काम का है, बाकी को हम रिमूव कर दें। तो डायमेंशनैलिटी कुड बी इन 40 और 35 जो हमारी पिछली एग्जांपल थी, लेकिन इसका मशीन लर्निंग में या स्टैटिस्टिक्स में स्पेसिफिक मेथड्स हैं दैट लुक इनटू डेटा, और वो आपको डेटा को डायमेंशन रिड्यूस कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका नाम है PCA। PCA का पता नहीं आपने शायद नाम सुना होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो आपके वेरिएंस के मेजर पे काम करता है और डेटा को मैप कर देता है बेस्ड ऑन हाउ फार इट इज फ्रॉम मीन एंड यू नो इट फाइंड्स डिफरेंट डायमेंशंस। So these are few practical issues with k nearest neighbor. So first is curse of dimensionality. We want to reduce n। डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने का मतलब है रिड्यूस डी, n को रिड्यूस करने का मतलब है वी डोंट नीड टू कंपेयर ऑल n, और उसके लिए फिर केडी ट्रीज यूज होते हैं। तो जस्ट इफ डेटा स्ट्रक्चर इज स्मार्ट इनफ वी नो कि आपका जो टेस्ट क्यूरी पॉइंट है
उसके प्रोबेबल नियरेस्ट नेबर किस कोऑर्डिनेट में है. So we don't have to look into 1 million samples, probably we have to just look into 1000 samples. और उसकी वजह से आप काफ़ी क्विकली के नियरेस्ट नेबर कन्वर्ट हो जाता है सोल्यूशन पे. ये थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ यू. अगेन केडी ट्री वगैरह लिखा हुआ है मैंने. इन्वर्टेड लिस्ट इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर KNN एंड लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग. ये जस्ट नेम फॉर यू गाइस. अच्छा, पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आर यूजुअली दे हैव इंडक्टिव बायस बिकॉज दे इंड्यूस फंक्शंस. ठीक है, और किस किस्म के फंक्शंस होते हैं? इंडक्टिव या डिडक्टिव. इंडक्टिव का मतलब है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरलिटी. छोटे एग्जाम्पल को हम जनरलाइज कर रहे हैं फॉर बिगर पॉपुलेशन, जैसे के नियरेस्ट नेबर में हम कर रहे हैं. तो वी आर कंसिडरिंग कि तमाम जीरोज या तमाम 6 ऐसे ही होंगे, एंड वी आर मेकिंग क्लासीफाई. सो फॉर दिस KNN क्लासीफायर व्हाट इज बायस या व्हाट इज सपोजिशन? सपोज क्या कर रहा है के नियरेस्ट क्लासीफायर? मैंने शुरू की स्लाइड में लिखा हुआ भी था कि एजम्पशन, एंड दैट इज द इंडक्टिव बायस. कैन एनीवन रिकॉल कि वो क्या मैंने बताया था? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? व्हाट इज इंडक्टिव बायस ऑफ के नियरेस्ट नेबर? लिखा हुआ. व्हाट इज इंडक्टिव बायस? चलें ये बताएं, व्हाट इज इंडक्टिव बायस? सो इंडक्टिव बायस बेसिकली जो आपका एल्गोरिदम होता है वो एक सेंस में बायस्ड होता है कि वो कुछ असम्पशंस लेता है. बिल्कुल सही. assumptions, आपकी एल्गोरिथम की assumptions हैं, प्रायर assumptions हैं, राइट? तो के नियरेस्ट नेबर की प्रायर assumption क्या थी या क्या है? इसके नाम में ही आ रही है वो. के नियरेस्ट नेबर क्या कर रहा है? वो सिर्फ नियरेस्ट नेबर्स को कंसिडर कर रहा है. नियरेस्ट नेबर को कंसिडर करके क्या एज्यूम कर रहा है? कि जी जी कहिए. जो वो क्लासिफिकेशन करता है वो उसी असम्पशन पे करता है कि जो सबसे सिमिलर क्लास होगा वो सबसे नियरेस्ट ही होगा. एग्जैक्टली, यही assumption है, इंडक्टिव बायस है. classification that most similar classification of the nearby and Euclidean distance. ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा. सिंपल assumption ये है कि nearby data points have near same labels. near data points have same output. ये शायद मैंने पहली उसमें भी स्लाइड में भी कहीं मैंने बताया था, जहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको किया था. let me just go back. assumption similar inputs have similar outputs. That is inductive bias. ये लिखा हुआ assumption. That is inductive bias of k-nearest neighbor. That similar data points have similar labels. Inputs की जगह अगर आप data points और output की जगह आप label लिख दें तो यही बात है. ठीक है. This is inductive bias of k-nearest neighbor classifier. इसी को डिफरेंट तरीके से मैंने लिखा हुआ. अच्छा, इसके डिसीजन बाउंड्री को विजुलाइज करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, बिकॉज दिस इज द डेटा सेट. ये मैंने एक एग्जांपल ली हुई है और ये ब्लू के अंदर और रेड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अच्छा, अगर आप इसको हटा भी दें तो यू कैन ड्रॉ डिसीजन बाउंड्री. ये तो टेस्ट क्यूरी एक्स पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है आपका.
इसको हम सिंपली ड्रॉ करके देख सकते हैं कि फीचर वेक्टर स्पेस को किस तरह डिवाइड करेगा नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर। सिंपली जो नियरेस्ट पॉइंट्स हैं डिफरेंट क्लासेस का, उनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, नॉर्मल। सो दिस इज द नॉर्मल बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। इसका और इन पॉइंट्स का ऑलमोस्ट इस तरह का है। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब पता है ना आप लोगों को? आ रही है समझ में? ये इस किस्म की डिसीजन बाउंड्री जो बन सकती है, राइट? जी सर। अभी मैं वो करके दिखाता हूँ। देखें, दिस इज जस्ट ड्रॉइंग अ नॉर्मल बिटवीन टू क्लासेस। अगर आप इनका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा सिंपल। दिस इज वन नियरेस्ट नेबर के। अगर आप 3 कर देंगे तो दूसरे जो नियरेस्ट नेबर है उनका इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा। बट इफ k इक्वल टू 1, सिंपल ड्रॉ अ नॉर्मल बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट क्लासेस। और इसको आप सिंपल ड्रॉ करके देख सकते हैं, कोई भी आप ले लें। ये पाइथन के अंदर भी हो सकता है, आप हाथ से भी करके देख सकते हैं। खुद ही ट्रॉय डेटा सेट बनाएं, उसका हाथ से ड्रॉ करें ग्राफ पेपर के ऊपर, और फिर पाइथन से करके देखें, एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, ये बाकी फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 9:50 हो गए हमारा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर प्लीज आस्क मी। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। राइट, उसामा कोई क्वेश्चन है? नो सर।